लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि KGMU के कलाम सेंटर में गुरुवार को मनोचिकित्सा विभाग द्वारा ऑटिज्म पर एक CME का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत प्रोफेसर डॉक्टर विवेक अग्रवाल के उद्घाटन के भाषण के साथ हुई। बता दें कि CME में मनोचिकित्सक, बाल रोग विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक सहित लगभग 200 प्रतिनिधियों ने शिरकत की। CME में डॉक्टर विवेक अग्रवाल ने ASD में शुरुआती पहचान और हस्तक्षेप के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऑटिज्म के बढ़ते मामलों में कई कारक शामिल हैं और ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए सेवा को मजबूत करना जरूरी है। डॉक्टर प्रतिभा कारत ने मुख्य वक्ता के रूप में की शिरकत। बैंगलोर में द कॉम डेल ट्रस्ट के संस्थापक निर्देशक डॉक्टर प्रतिभा कारंथ ने 2 व्यवहारिक सत्र दिए। उनका पहला सत्र ऑटिज्म क्लिनिक नट और बोल्ट पर आधारित रहा, जिसमें उन्होंने ऑटिज्म क्लिनिक स्थापित करने और चलाने के मूलभूत पहलुओं पर प्रकाश डाला। वहीं दूसरे सत्र में डॉक्टर प्रतिभा ने ऑटिज्म के प्रबंधन में हालिया प्रगति और प्रौद्योगिकी का उपयोग इस पर प्रकाश डाला। उन्होंने नवीन नैदानिक उपकरणों से लेकर अत्याधुनिक चिकित्सीय तकनीकों तक के बारे में बताया। डॉक्टर कारंथ ने एक अभिनव मोबाइल एप्लीकेशन साझा किया, जिसे उनके संगठन द्वारा विकसित किया गया है और इसके उपयोग का एक संक्षिप्त प्रदर्शन। Use of technology can be in 2 ways. One is to address the special issues of children who have tactile sensitivities, who have fears of heights or specific difficulties that they face. But the wider use of technology should be in enabling children and their families to access the services that they need, because they need a wide variety of services which are not available in any one place in the country, and families find it very difficult to access these services given the distances, the money, the travel needed, the lack of information even. And it's here that technology and service delivery through technology by apps can make a big difference in our country, and I think we should pursue this. The incidence of autism way back in the late 1940s and 50s, when it was first identified, was said to be 1 in about 10,000 children. It was considered an extremely rare condition, but over the last 80 years, it has been on a vertical rise. So from 1 in 10,000, we are now talking about 1 in 36 being diagnosed with autism spectrum disorders. So the enormity of the problem, particularly for countries like ours, which have one of the largest growing children population, is significant, and I think we should address it, because what we don't realize is it's not just a question of the children. Yes, the children deserve the help, they should be given it as effectively as possible, as early as possible, but even as a society we should remember that if these children are not helped now when it can make a difference, the negative impact of it when they grow up on our society will also be large. डॉक्टर प्रतिभा ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि आखिर कैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम ऑटिज्म को लेकर जागरूकता बढ़ा सकते हैं। The app was developed by us largely because, despite all of our best efforts, given the comprehensive nature of the assessments and the interventions, as well as the long period of time in which these assessments are needed, we felt that the resources available were not even 1% of what this country needs. So the only way that we can address and alleviate this condition in the large numbers that I mentioned earlier is to use technology, where we handhold parents, we provide a platform for all the multiple specialities that the child and the family needs access to, so that they can access it from their home at their convenience in their language at a reasonable rate which can be afforded by them. अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखेगा KGMU। डॉक्टर अमित आर्या। डॉक्टर अमित आर्या ने CME के की पॉइंट्स पर चर्चा करते हुए बताया कि आज का आयोजन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकारों से पीड़ित लोगों की जरूरतों को पूरा करने के हमारे सामूहिक प्रयास में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस आयोजन की सफलता ने न केवल उपस्थित लोगों पर तत्काल प्रभाव को उजागर किया, बल्कि ऑटिज्म देखभाल और समर्थन को बढ़ाने के उद्देश्य से भविष्य की पहल के लिए मंच तैयार किया। KGMU में मनोचिकित्सा विभाग ने ऑटिज्म जागरूकता को बढ़ावा देने और ASD वाले व्यक्तियों के लिए अधिक सुलभ उपचार विकल्प विकसित करने के अपने प्रयासों को जारी रखने की योजना। ये जो CME हुई है, इस तरह का प्रोग्राम पहली बार लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है।
और इसको किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में मानसिक रोग विभाग में आयोजित कराया, जिसमें कि जो हमारी की स्पीकर हैं डॉक्टर प्रतिभा करांत, ये डायरेक्टर हैं कॉमडील ट्रस्ट बैंगलोर से। मैडम का जो एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है ऑटिज्म में और न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर में, वो हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा माना जाता है। मैडम ने जो बातें बताई उसमें ऑटिज्म के केयर के लिए बहुत ही वाजिब है, और इनको अपनी प्रैक्टिस में हम लोग न सिर्फ साइकियाट्रिस्ट बल्कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिक सोशल वर्क, स्पेशल एजुकेटर, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट इस्तेमाल करके ऑटिज्म के बच्चों को और उनके परिवार को बहुत राहत दे सकते हैं। मैम ने जो बताया उसमें ऑटिज्म क्लिनिक को कैसे रन करना है, ये ऑटिज्म क्लिनिक्स आप प्राइवेट में, गवर्नमेंट सेटअप में कहीं भी आसानी से रन कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं, किस तरह के आपके असेसमेंट टूल्स होने चाहिए, किस तरह का स्टाफ होना चाहिए और उनकी किस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए, इसके बारे में मैडम ने बताया। दूसरा भी उनका सेशन था वो था तकनीकी का इस्तेमाल ऑटिज्म में। तो प्रतिभा मैडम ने जो अभी एक ऐप डेवलप किया है, उस ऐप को उन्होंने लखनऊ में लॉन्च किया है और उस ऐप का इस्तेमाल भी हम लोग को यहाँ पर उन्होंने सिखाया। तो एक छोटा सा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन उस ऐप पर किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल मोबाइल सभी जगहों पर है, लेकिन मोबाइल का सही इस्तेमाल सभी जगहों पर नहीं होता। तो मैडम ने ये बताया कि इस मोबाइल का इस्तेमाल किस तरीके से एक ऐप के माध्यम से, ऑटिज्म ऐप के माध्यम से हम अपने बच्चों को, उनके फैमिलीज को किस तरीके से मदद कर सकते हैं, उसके बारे में हमें जागरूक किया और बताया। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें आरोग्य इंडिया।